Hello students, today we are starting with SS and we are starting with history first chapter, the French Revolution. Students, you should be knowing the meaning of revolution. Revolution means any kind of uprising, any kind of struggle by people against the rulers, right? French Revolution हम पहले पहले हिस्ट्री में पढ़ते हैं. इट इज कॉल्ड द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स बिकॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ अपराइजिंग बाय द पीपल अगेंस्ट देयर रूलर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. राइट, ये पहला अपराइजिंग था जिसमें लोग खड़े हो गए, सोल्जर्स या आर्मीज नहीं, लोग अपने ही राजा के अगेंस्ट खड़े हो गए. So open your history textbooks. We are starting with the chapter. And you can go to page number 3. Start with page number 3, the French Revolution. So students, I am reading from page number 3. So on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. The rumors spread that there would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison of the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. And in the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. Bastille was hated by all as it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished, its stone fragments were sold in the markets or to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है, इसको हम कहते हैं द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल. और ये हुआ था 1789 में, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल. इसमें सबसे पहली चीज है पीपल्स मिलिटिया वॉज फॉर्म्ड. पीपल्स मिलिटिया मतलब बहुत सारे लोगों का क्राउड जो एक मिलिट्री एक्शन लेने वाला था. जो एक्शन नॉर्मली मिलिट्री या आर्मी लेती है वो पीपल का क्राउड लेने वाला था. इसको पीपल्स मिलिटिया बोलते हैं, बराबर. और इसमें कितने लोग थे? अबाउट 7,000 पीपल. ठीक है. दे अटैक्ड द fortress prison of Bastille, which was hated as it stood for the despotic मतलब absolute power of King Louis the 16th. ओके, लुइस द 16th जो किंग ऑफ फ्रांस था, उसके नीचे ये फोर्ट्रेस बेस्टिल आता था और उसमें प्रिजनर्स थे. सो दे फ्रीड द प्रिजनर्स, 7 prisoners from inside this prison. Okay, and the struggle soon spread to countryside. Countryside मतलब
rural areas. Countryside means rural areas. And this was the beginning of French Revolution. तो स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर जो है वो इस इंसिडेंट के पहले और इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ उस पे है. तो ये इंसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फिर से समझ लीजिए. ऑन द मॉर्निंग ऑफ in July 1789, People's Militia, about 7,000 people gathered in town center, town hall, and there was a rumor that the army was coming to the city to fire on the people. तो लोगों को ऐसा लगा कि आर्मी, किंग की आर्मी आके हमको अटैक करे उसके पहले हम उनको अटैक करें. So they attacked the fortress prison of Bastille, which was hated. लोगों में हेट्रेड था किंग के अगेंस्ट. इसके रीजंस हम पढ़ेंगे. एज इट स्टूड फॉर द एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग लुइस द 16th. They freed the 7 prisoners and the struggle soon spread to the countryside of rural areas, and this was the beginning of the French Revolution. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके रीजंस क्या है. सो टर्न द पेज. अब स्टूडेंट्स कोई भी रिवॉल्यूशन होता है ना स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैं आपको दो चीजें बताऊं. एनी रिवॉल्यूशन डजंट स्टार्ट ऑन द स्ट्रीट और ऑन द बैटलफील्ड. नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ द पीपल. तो फॉर नोइंग द रीजंस कि ये सब क्यों हुआ, इसके लिए हमें 15 इयर्स बैक जाना पड़ेगा. तो 1789 से 15 इयर्स बैक रिकैप. ठीक है, 15 इयर्स रिकैप लेंगे, रिवाइंड करेंगे पीछे के इवेंट्स को, फिर हम आएंगे 1789 के इस इवेंट पे, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंड फर्दर. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, या फिर आप इनको अंडरलाइन कर देंगे तो भी चलेगा. या तो अंडरलाइन कर दीजिए या फिर लिख लीजिए. पॉज द वीडियो एंड राइट इट. Now students, on the next page, French society during the late 18th century. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, 1774 में क्या हुआ. लुई द 16th ऑफ द बोरबोन फैमिली ऑफ किंग्स. बोरबोन मतलब इनका सरनेम, लुई बोरबोन. इसको बोरबोन डायनेस्टी ऑफ किंग्स कहते हैं. इसमें कैसा होता है, जो सबसे पहले किंग बना ना इस डायनेस्टी का, वो लुइस द फर्स्ट, फिर उसका बेटा लुइस द सेकेंड, उसका बेटा लुइस द थर्ड, ऐसे करके ये लुइस द 16th, मतलब 16 generations of Bourbon family ruled one after the another. तो 1774 में क्या हुआ, लुइस द 16th became king of France. ठीक है, इसके अलावा he was 20 years old and married Austrian princess Mary Antoinette. तो ये स्टूडेंट समझ लीजिए, ये 20 इयर्स का था जब ये थ्रोन पे बैठा, खाली 20 साल का. एंड ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट. शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थी. एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत सारा खर्चा, उसको बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे सिल्क के कपड़े ये चाहिए थे. तो आप समझ सकते हो उसमें. अब राजा का इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स, राजा का इनकम होता है टैक्सेस.
ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ लुइस द 16 के लिए ये उसकी प्रिंसेस यानी रानी को खुश रखना जरूरी था, ठीक है, क्वीन को खुश रखना जरूरी था, सॉरी प्रिंसेस नहीं है क्वीन है, क्वीन को खुश रखना जरूरी था। पहले ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी लेकिन अब ये फ्रांस की क्वीन थी, राइट। ऑस्ट्रिया में शी वॉज द प्रिंसेस बट इन फ्रांस शी वॉज द क्वीन। तो ये क्वीन को खुश रखना जरूरी था, उसके खर्चे उठाना जरूरी है इसके लिए, किंग ऑफ फ्रांस के लिए। इसके अलावा इसके दूसरे प्रॉब्लम्स थे। द अदर प्रॉब्लम्स वेर वॉर लोन्स ऑन फ्रांस increased from 2 billion livres to 3 billion livres। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्सेलिस, ये एक और बड़ी बात थी, इसमें भी बहुत सारे लीवर्स लगते थे। लीवर मतलब उस जमाने की करेंसी फ्रांस की। तो फ्रांस ने क्या किया था स्टूडेंट्स, अमेरिका को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए ब्रिटेन के साथ वॉर्स लड़े थे। उन वॉर्स की वजह से फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का लोन लग गया था। 2 बिलियन लिवर्स मतलब 2 के बाद 9 zeros मतलब 200 करोड़, 200 करोड़, ठीक है। और ये लोन बढ़ के हो गया 3 बिलियन लिवर्स बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस के कोर्ट का मेंटेनेंस और 1 बिलियन लिवर्स का लोन एक्स्ट्रा लगने वाला था। अब इस इंटरेस्ट, इस लोन लिया है तो ईएमआई तो चुकाना पड़ता है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था किंग और उसके मिनिस्टर्स को। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज टू ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट सच एक्सपेंसेस। इसके एक्सपेंसेस है, एक है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो यहां पे एक ही चीज है कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, बराबर। इसके अलावा यहां पर जो हमने पॉइंट रह गया है, तो मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, कोर्ट, कोर्ट ऑफ वर्सेल, इसके अलावा भी दूसरे कोर्ट्स, आर्मी भी है, कोर्ट्स इसके अलावा के, इसके अलावा द यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, इन सब का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर वी कैन सी दैट ऑल दीज थिंग्स कॉस्ट द किंग टू इंक्रीज द टैक्सेस, एंड दिस वॉज गोइंग टूवर्ड्स, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप towards the French Revolution. This was the first step the people were afraid of, the increase of taxes. Correct? So please note down this. नाउ स्टूडेंट्स, अब इंक्रीज ऑफ टैक्सेस करने के लिए इनको टैक्सेस को इंक्रीज तो करना ही था, लेकिन ये टैक्सेस को इंक्रीज करने से पहले आप पहले फ्रेंच सोसाइटी समझ लीजिए
तो ये पेज नंबर 4 पे एक डायग्राम दिया हुआ है अबाउट द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। तो आप उस डायग्राम को देखिए स्टूडेंट्स। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। थ्री एस्टेट्स ऑफ फ्रांस। अब इसमें सबसे ऊपर था फर्स्ट एस्टेट। इसको बोलते थे क्लर्की। क्लर्की मतलब चर्च एंड इट्स पीपल। जितने भी फ्रांस में चर्च थे उन सब में अंदर लोग, चर्च में कौन लोग होते हैं? प्रीस्ट होता है, फिर बिशप्स होते हैं, प्रीस्ट के नीचे बिशप्स होते हैं, उनके नीचे फिर लोअर कैटेगरी के प्रीस्ट होते हैं। तो ये सब, ये फर्स्ट एस्टेट होता था और इसको कोई टैक्सेस पे नहीं करने होते थे। इनको नो टैक्सेस, चर्च के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं। सेकंड एस्टेट होता था नोबिलिटी। नोबिलिटी में किंग, मिनिस्टर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देयर फैमिलीज। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स, मिनिस्टर्स, किंग, खुद लुइस द 16 और इन सबकी फैमिली, इनका भी रूल था नो टैक्सेस। अब था थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट में कॉमन पीपल थे। कॉमन पीपल में कुछ मेन वेल्दी थे, कुछ वुमेन थी, कुछ पीजेंट्स थे, लॉयर्स, आर्टिस्ट एटसेट्रा। ये लोग दो तरह का टैक्स देते थे स्टूडेंट्स। एक टैक्स देते थे ये लोग चर्च को, जिसको बोलते हैं टिथ, और दूसरा टैक्स ये लोग देते थे टेल, जो देते थे नोबिलिटी को। तो ये था थ्री एस्टेट्स ऑफ फ्रांस। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। अंडरलाइन करोगे तो नहीं पता चलेगा। आप लिख लीजिए। टेक्स्ट बुक में ये चीजें क्लियरली नहीं दी हुई है, थोड़ा कंफ्यूज तरीके से दी हुई है, बट आई हैव मेड इट क्लियर फॉर यू। सो प्लीज राइट इट डाउन। तो यहां पे आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो थर्ड एस्टेट है, कॉमन पीपल जिसमें आते हैं, जिसमें वेल्दी मैन, वुमेन, पीजेंट्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, ये सब जो आते हैं, इनके ऊपर पूरे फ्रांस के टैक्सेस का बर्डन था। टिथ इनको देना होता था चर्च को, और टेल इनको देना होता था सेकेंड एस्टेट वालों को, नोबिलिटी वालों को, ऑल द थर्ड एस्टेट सिटीजन्स। तो अगर सपोज आप मान लीजिए टैक्सेस बढ़ते हैं तो किसका टेंशन बढ़ेगा? क्लर्की के ऊपर कोई टेंशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनको टैक्सेस देने ही नहीं थे। सेकंड एस्टेट वाले पर भी टैक्सेस का टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो इनको तो फायदा ही है, इनको कोई नुकसान नहीं है। थर्ड एस्टेट वालों को जरूर नुकसान है, और ये थर्ड एस्टेट वाले थे जिन्होंने स्टार्टिंग में हमला किया था किंग के उस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल पे। तो ये थर्ड एस्टेट के अंदर बहुत गुस्सा है। तो ये आपने समझ लिया है थ्री एस्टेट्स ऑफ फ्रांस। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट्स गो फर्दर। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इसमें
प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल है, द स्ट्रगल्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ये ओल्ड रिजाइम है स्टूडेंट्स, जो फ्रांस में चल रहा है। ओल्ड रिजाइम के टाइम पे लोगों के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। एक तो प्रॉब्लम है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। दूसरा था डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। ये भी होगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। थर्ड थिंग, प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। तो price rise of bread, which was a staple diet for majority of the people. Fourth, most workers employed as laborers in workshop, but the wages did not keep pace with the rise in prices. तो यहां पे wages were fixed, and so the gap between rich and poor widened. ये गैप क्यों बढ़ गया? क्योंकि रिच बिकेम रिचर, पुअर बिकेम पुअरर। यहाँ पे रिच मतलब क्लर्गी और नोबिलिटी, पुअरर मतलब थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट और ज्यादा रिच होते गया और थर्ड एस्टेट वाले और ज्यादा पुअर होते गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स, things became worse as hail or drought reduced the harvest. तो ये भी एक प्रॉब्लम था, हेल और ड्राउट। हेल मतलब स्नो का स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब स्नो स्टॉर्म, और ड्राउट मतलब दुष्काल, बारिश ना होना। दे ऑल्सो रिड्यूस द हार्वेस्ट। तो लोगों के लिए तो देखिए हर तरफ से आफत है, बराबर। अभी के टाइम पे कोरोना लॉकडाउन है, कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है। अर्थक्वेक भी हो रहा है, कोरोना भी फैला हुआ है, फिर कभी कभी अपने देखे तो ये अभी स्टॉर्म भी आया, साइक्लोन भी आया। तो ये सब चीजें जब साथ में हो जाती है ना, तब ऐसे रिवॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सो यू कैन नोट दिस डाउन। अब स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, करेक्ट। तो यहां पे ग्रोथ ऑफ फिलोसोफर्स, राइट। तो सबसे पहले तो सम वेल ऑफ मिडिल क्लास पीपल felt the need to end the privileges. जैसे मैंने स्टूडेंट्स बताया, कोई भी रिवॉल्यूशन बैटलफील्ड या स्ट्रीट पे स्टार्ट नहीं होता है, दिमाग में स्टार्ट होता है। तो ये मिडिल क्लास के जो लोग थे, वेल ऑफ मिडिल क्लास मतलब बिजनेस टाइप, ये सब लोगों को सबसे पहले नीड रियलाइज हुआ कि ये प्रिविलेजेस का सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, सभी लोगों को टैक्स देने चाहिए। ये क्या बात हुई, चर्च टैक्स ना दे, नोबिलिटी, मिनिस्टर्स ये सब टैक्स ना दे, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग ने क्या ठेका लेके रखा है हर चीज का टैक्स देने का? क्यों ये लोग फ्रांस में नहीं रहते, ये लोग पैसे नहीं कमाते, तो ये लोग क्यों नहीं टैक्स दे? ठीक है, ये दिमाग में बातें है। अब इसके अलावा 3 फिलोसोफर्स
जिनके बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। सबसे पहला था जॉन लॉक। ये एक फिलोसोफर था। फिलोसोफर मतलब स्टूडेंट्स जो ऐसे बुक्स लिखते हैं जिससे लोगों के माइंड पे इफेक्ट हो। फिलोसोफर्स की बातों से लोगों के माइंड चेंज होते हैं, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले थे जॉन लॉक। ये जॉन लॉक ने जो बुक लिखी है स्टूडेंट्स, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि किंग को डिवाइन मानने की जरूरत नहीं है। किंग को जो लोग गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो किंग भगवान नहीं होता। किंग अगर हम पे रूल करता है तो हम पे एहसान नहीं करता है, बदले में हमसे टैक्सेस ले रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम पे अच्छे से रूल करे। दिस इज व्हाट वाज रिटन बाय जॉन लॉक इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड है जीन जैक्स रोज्यू। इसने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रोज्यू ने बताया है कि सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये सोसाइटी का एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये इसने डेमोक्रेसी वर्ड नहीं बोला था, इसने बोला था कि किंग को रूल करना ही नहीं चाहिए। तो ये जॉन लॉक से भी एक कदम आगे निकला। जॉन लॉक ने तो सिर्फ इतना बोला था कि किंग को भगवान की तरह मत पूजो, किंग इंसान है और उसको एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम पे रूल करना चाहिए क्योंकि वो हमसे टैक्स ले रहा है। जीन जैक्स रोज्यू ने एक कदम आगे उठ के ये बोल दिया कि किंग जो है वो होना ही नहीं चाहिए, रेदर देन दैट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग अपने चुनिंदा उम्मीदवार को इलेक्ट करें और वो उनको रूल करे। तो ये जीन जैक्स रोज्यू ने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी दे दिया। उसने डेमोक्रेसी वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन डेमोक्रेसी यही होती है जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमें रूल करते हैं। तो जीन जैक्स रोज्यू ने सबसे पहले डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की है। और थर्ड है मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क ने द स्पिरिट ऑफ लॉस। Law should be equal for everyone. Law should be divided into legislative, judiciary, executive. ये सब चीजें जो आज के टाइम पे हम पार्लियामेंट को डिवाइड करते हैं, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वी आर डिवाइडिंग इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सबसे पहले मॉन्टेस्क ने लिखा था इन द स्पिरिट ऑफ लॉस। द पावर शुड बी शेयर्ड अमॉन्ग द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।
Now students, we are going to the second part of the chapter, how the outbreak of the revolution took place. So process of outbreak of revolution. ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स लुइस द 16th को ये टैक्सेस इंक्रीज करने थे, लेकिन इसके लिए इसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी ऑन 5th मई 1764, सॉरी 1789, not 1764, 1789. Louis the 16th called the meeting of एस्टेट्स जनरल. ठीक है, इसमें इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट एस्टेट के 300 पीपल थे, दे वेर सिटिंग. सेकेंड एस्टेट के अगेन 300 पीपल, दे वेर ऑल्सो सिटिंग. एंड दी थर्ड एस्टेट, इसके 600 पीपल थे एंड दे वेर स्टैंडिंग. ठीक है, वुमेन वेर ओनली पैसिव विजिटर्स, वुमेन वेर नॉट गिवन द राइट टू वोट. अब इसमें कैसा होता था, वन एस्टेट वन वोट, ये सिस्टम था. आप ये सिस्टम ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं कि ये 300 लोग, ये 300 लोग, ये 600 लोग सब वोट करेंगे, ऐसा नहीं. पूरा फर्स्ट एस्टेट एक ही वोट डालेगा. भाई टैक्सेस बढ़ने चाहिए कि नहीं. अब आप सोचिए, फर्स्ट एस्टेट वालों को क्या प्रॉब्लम है टैक्स बढ़ाने में. फर्स्ट एस्टेट वालों को तो ऑलरेडी पैसे मिलने वाले हैं, तो फर्स्ट एस्टेट वालों ने बोल दिया हाँ बढ़ाओ टैक्स, वी आर इन फेवर. सेकेंड एस्टेट वालों ने भी बोल दिया वी आर इन फेवर, बढ़ाओ टैक्स. थर्ड एस्टेट वालों ने बोला कि टैक्स मत बढ़ाओ. थर्ड एस्टेट वाले जो 600 लोग थे, इन्होंने बोला कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए. लेकिन किंग लुइस द 16th ने बोला नहीं, 1 पर्सन 1 वोट नहीं होगा, 1 एस्टेट 1 वोट ही होगा, क्योंकि वही सिस्टम है. थर्ड एस्टेट वालों को चाहिए था कि सिस्टम चेंज करो, 1 पर्सन 1 वोट रखो तो पता चले. लेकिन किंग ने ये अलाउ नहीं किया, 1 एस्टेट 1 वोट. तो इसकी वजह से थर्ड एस्टेट पीपल वॉकड आउट. इन प्रोटेस्ट एंड दे gathered in the tennis court. ठीक है, इन्होंने they proclaimed themselves as नेशनल असेंबली, और इन्होंने ये बोला कि हम लोग इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को अब एंड करके ही रहेंगे. ठीक है, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है. तो ये जो थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं, दे वॉकड आउट ऑफ दैट हॉल इन प्रोटेस्ट एंड दे गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट. और वहां पे टेनिस कोर्ट में इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली बता दिया, एक नई पार्टी बना दी, पॉलिटिकल पार्टी, जो डायरेक्टली किंग ऑफ फ्रांस को चैलेंज करेगी कि तुम्हारे और हमारे बीच में पावर शेयर करो. ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो नाम आते हैं
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड एस्टेट की नेशनल असेंबली थी, इसमें दो नाम आते हैं, मीराब्यू एंड अबीसियस। मीराब्यू जो है, he was born in the nobility family, और अबीसियस जो है, he was born in the clergy family। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट कर रहे थे थर्ड एस्टेट को। तो स्टूडेंट्स कुछ अच्छे लोग भी थे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में थे, जैसे अबीसियस और मीराब्यू। मीराब्यू सेकंड एस्टेट का था नोबिलिटी में, अबीसियस फर्स्ट एस्टेट क्लर्की का था, लेकिन फिर भी ये लोग थर्ड एस्टेट के लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। सो दिस वाज अ वेरी नाइस थिंग टू सी। तो अब स्टूडेंट्स, एक तरफ नेशनल असेंबली ये टेनिस कोर्ट में ऑपोज कर रही थी सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस को और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के चक्कर में पड़े थे, और दूसरी तरफ ये किंग ने, जो ये किंग था, किंग लुइस द 16th, he ordered the troops to move to Paris। ठीक है, और इसमें रूमर स्प्रेड हो गया। इसने सिर्फ एक्चुअली ट्रूप्स भेजे थे, आर्मी भेजी थी लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन रूमर स्प्रेड हो गया that army will attack the people, and thus the storming of Bastille took place। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि पहले पहले जो हमने इंसिडेंट पढ़ा, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल, ये क्यों हुआ। ये सारे उसके रीजन है, ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर आपने वो लास्ट वाला पेज लिख लिया है तो ये पेज भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल है जो मैंने आपको समझाया। अगेन मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले किंग ने एस्टेट्स जनरल को बुलाया टू इंक्रीज द टैक्सेस। उसमें थर्ड एस्टेट वालों ने सिर्फ मना किया, पहले और सेकंड एस्टेट वालों ने यस बोल दिया, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। इन्होंने नेशनल असेंबली बना दी इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सेलिस, और इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में सोचा। इसको अपोज करने के लिए किंग लुइस द 16th ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि पेरिस में जाके सिचुएशन को कंट्रोल में लो, लेकिन इसमें एक रूमर मतलब अफवाह फैल गई कि ये ट्रूप्स लोगों पे फायर करने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों ने 7,000 पीपल गैदर्ड एंड दे स्टॉर्म द बेस्टिल फोर्ट्रेस। ओके, अब स्टूडेंट्स कंट्री साइड में क्या हुआ देखिए। इन द कंट्री साइड मतलब मैंने आपको समझा दिया है रूरल एरिया, बराबर। द रूमर्स स्प्रेड अगेंस्ट मैनर लॉर्ड्स। मैनर लॉर्ड्स मतलब
जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, ठीक है, कि ये लोग अपने लोगों के साथ हम पे हमला करेंगे, तो विलेजर्स ने मैनर लॉर्ड्स के चैटियक्स जला दिए। द पीजेंट्स waged local wars against the manor lords and destroyed the Chatiaks. पीजेंट्स ने ये बहुत सारे लोकल वॉर्स किए अगेंस्ट द मेनर लॉर्ड्स, मतलब ये लैंड लॉर्ड्स, एंड दे अटैक द चैटियक्स। चैटियक्स मतलब इनका जो मैनर लॉर्ड्स के जो बड़े बंगलोज होते थे उनको अटैक किया गया, चैटियक्स, नोबलमैन के पैलेसेस। A large number of nobles fled from their homes, many of them to neighboring countries. So finally, Louis XVI gave recognition to National Assembly. ठीक है, और इसने ही एग्रीड टू रूल बाय न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफ चर्च वॉज टेकन अवे worth 2 billion livres। 2 बिलियन लिवर्स की प्रॉपर्टी चर्च की जब्त की गई। इतना फायदा हो गया फ्रांस के स्टेट को चर्च की प्रॉपर्टी को जब्त करके। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दिस, व्हाट हैपेंड इन द कंट्री साइड, what happened in the countryside during the French Revolution। ये हेडिंग आप दे सकते हो और ये नोट डाउन कीजिए पॉज करके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके हिसाब से क्या किया गया वो हम पढ़ते हैं। तो अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आप नेक्स्ट पेज पर आइए, किस तरह का सिस्टम है देखिए। फ्रांस में यहां पर जो सिस्टम आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो अलग से जज वोट किया जाएगा, किंग और मिनिस्टर्स वोट किए जाएंगे फ्रॉम लेजिस्लेचर ऑफ नेशनल असेंबली, और इस नेशनल असेंबली में कौन कौन बैठेगा उसके लिए सिर्फ मेन अबव द एज ऑफ 25 एंड हैविंग प्रॉपर्टी, they were allowed to vote। बराबर, प्रॉपर्टी वर्थ 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, मतलब रिच लोग सिर्फ वोट करते थे। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये आप समझ लीजिए कि सबसे नीचे होते थे एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स किसको बोलते हैं? एक्टिव सिटीजन्स मतलब मेन अबव 25 एंड हैविंग इनकम इक्वल टू और मोर देन 3 days ऑफ लेबर वेज, इनको बोलते थे एक्टिव सिटीजन्स। सिर्फ ये लोग वोट कर सकते थे। ठीक है, ये लोग वोट करते थे इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स जो होते थे वो टोटल 50,000 पीपल होते थे,
और ये इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली में कितने लोग बैठते थे स्टूडेंट्स? इधर नंबर लिखा हुआ है 745 मेंबर्स। ठीक है, ये सब मेन होते थे। वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। 25 इयर्स के बिलो मैन, दे वर नॉट अलाउड टू वोट, एंड मैन हुज इनकम वॉज लेस देन 3 days ऑफ लेबर वेज वर नॉट अलाउड टू वोट। मतलब पुअर पीपल को नॉट अलाउड, लेस देन 25 नॉट अलाउड, वुमेन नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये पहले एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को वोट करते थे। ये 50,000 इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को वोट करते थे। इसके अलावा एक्टिव सिटीजन्स जज को वोट करते थे। एक जज अपॉइंट किया जाता था तो डायरेक्टली क्रिमिनल और सिविल केसेस सुनेगा। ये एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते थे। अब स्टूडेंट्स, सवाल है कि नेशनल असेंबली और किंग, ये दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते थे। नेशनल असेंबली के मैक्सिमम प्रोपोजल्स किंग को मानने ही पड़ते थे, लेकिन किंग के पास एक वीटो पावर था। वीटो पावर टू से नो टू नेशनल असेंबली। लेकिन ये वीटो पावर का मतलब ये नहीं है कि हर चीज में मना किया जाए। वीटो पावर का मतलब ये है कि वो मना कर सकता है, बट ही हैज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि ये कोई कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। नहीं है, सही बात है, ये कोई कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट, पुअर पीपल आर नॉट अलाउड टू वोट, लेकिन एटलीस्ट इट इज अ स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उस इलेक्शंस में बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, बट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इज द ट्रूथ। ठीक है, और इससे एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जो किंग को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन किंग भी अब इतने सालों से रूल कर रहा है, तो वो बोलता है भाई मेरे को भी कुछ तो दो पावर, तो वो वीटो पावर है, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये टैक्सेस के हिसाब से है। टैक्सेस जो पे करते थे उनके हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में दिए जाते थे right to life, freedom of speech, opinion, इक्वेलिटी। ठीक है, ये सब राइट्स दिए जाते थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ओपिनियन एंड राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर दीजिए। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप नोट डाउन कर लो तो अच्छा है। So students, we are stopping here today. We will continue with the lecture next time. Till then, goodbye.